Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvasesha Sanyavadi Paschachade Shatarine Om Jnanatimrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupagadayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. Hare Krishna. Dear devotees, thank you very much for giving me this opportunity to have your association and have the महाराज सभी association को हरे with कृष्ण कह रहे हैं Prabhupada और विश्व से धन्यवाद दे रहे हैं कि यहाँ पर सही भक्तों के बीच में मुझे कुछ कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है and to have the association of Srila Prabhupada. और विशेष रूप से शिला प्रभुपाद जी की भी हम संगति प्राप्त कर रहे हैं आज। My, you could say, memories of Srila Prabhupada, I was thinking about it quite a lot last night. विशेष रूप से मैं कल रात्रि में बहुत स्मरण कर रहा था मेरा शिला प्रभुपाद के विषय में जो स्मरण है। And I noticed that you'd already had the wonderful association of Shrutikirti Prabhu and Vedavyas Priya Maharaj the last two evenings, I believe. तो आपको पहले से ही श्रुत कीर्ति प्रभु और वेद व्यास प्रिय महाराज जी के द्वारा उनका संग प्राप्त और प्रभुपाद जी के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त हुआ उनसे। And what can I say? Shrutikirti Prabhu is one of my dearmost godbrothers and very close friend. And श्रुत कीर्ति प्रभु मेरे बहुत अंतरंग मित्र और गुरु भाई है। it's like he walks with Prabhupada always in his heart. Whatever he और श्री speaks प्रभुपाद brings us सदैव जिनके closer to हृदय में Prabhupada. रहे हैं। I don't have that. Each and every one of us has our own unique, you could say, part to play. And at least we're given that little opportunity to play a part. हर भक्त का अपना एक विशेष भूमिका होती है और भगवान उसे उस प्रकार से सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। And for me, memories of Srila Prabhupada are awoken primarily by my present situation. So much, could you repeat again? Just missed Yeah, that. memories of Srila Prabhupada are awoken by my present situation. जो मेरी वर्तमान स्थिति है उसके द्वारा ही श्रील प्रभुपाद की स्मृति मेरे हृदय में जागृत हो रही है। It's not so much a past memory of Srila Prabhupada which I imprint upon the present, but rather kind of a little different. The present situations remind me of Srila Prabhupada. तो पूर्व काल मतलब भूतकाल में का बहुत अधिक संस्मृति नहीं है। वर्तमान की जो स्थितियां है वह मुझे श्रील प्रभुपाद जी का स्मरण दिलाती है। And I don't really have so many direct interactions like dear Lokanath Maharaj who's with us today, and Shrutakirti Prabhu and others. जिस प्रकार से श्री लोकनाथ स्वामी महाराज श्रुत कीर्ति प्रभु अन्य कई शिष्यों को श्रील प्रभुपाद का व्यक्तिगत संग मिला और बहुत अधिक आदान प्रदान रहा है उतना अधिक मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। Our relationship with Prabhupada, most of us in the UK, was one of serving behind the scenes. विशेष रूप से यूके में जो भक्त रहते हैं उनका श्रील प्रभुपाद के साथ जो संग हुआ है उनका आदान प्रदान हुआ है वो पीछे पीछे ही रहे मतलब बहुत सामने एकदम डायरेक्ट नहीं रहा है। And I'll talk about that a little bit in a moment, but I'd just like to reflect a little bit about the effect of memories. तो उसको कुछ ही क्षणों में यहाँ पर आप सभी के साथ में शेयर करूंगा जो मेरा अनुभव रहा है। And what an amazing effect it has on our consciousness when we hear the truthful glories of Srila Prabhupada. विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी का जब गुणानुवर्णक हम सुनते हैं
उनको स्मरण किया जाता है, उसका हमारी चेतना भावना पर कैसा प्रभाव होता है, उस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। When we hear them from glorious Vaishnavas, glorious servants of Srila Prabhupada who put Srila Prabhupada in the center and give us their association. विशेष रूप से उन्नत वैष्णव है, वरिष्ठ भक्त है, जो श्रील प्रभुपाद को अपने जीवन का केंद्र बनाए हैं, श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित रहे, उनसे सुनने का एक विशेष प्रभाव होता है। They speak without any false ego or any desire to put themselves in the center, but sincerely put Srila Prabhupada in the center of their lives. और किसी भी अभिमान मान की भावना नहीं है, स्वयं की कुछ प्रतिष्ठा का विचार न करते, केवल श्रील प्रभुपाद को सबके सम्मुख प्रस्तुत करके उनके गुणगान को गाया जाता है, इसका विशेष प्रभाव होता है। In the short little time we have, I'll try to reflect a little bit about what my memories of Srila Prabhupada are. तो कुछ क्षणों में मेरा जो श्रील प्रभुपाद के प्रति जो भी अनुभव और आदान प्रदान रहा है, उसको भी मैं आपसे कहूंगा। And they're more related to words of Srila Prabhupada rather than various incidences or events that may have taken place or even interactions which I may have had. मेरे जीवन में बहुत अधिक आदान प्रदान या कोई विशेष घटनाएं प्रसंग के बजाय विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी जो वाणी है, उनके शब्द है, उसका विशेष मेरे जीवन में अनुभव रहा है। I doubt whether, other than Lokanath Maharaj and maybe a few others, that many of you had the direct association with Prabhupada. I don't know, but I imagine not so many. और यहाँ पर जितने भी अभी भक्त लोग उपस्थित है इस ऑनलाइन धरातल मंच पर, उसमें शायद श्री लोकनाथ समाज को छोड़कर विरला ही कोई होगा जिसे प्रत्यक्ष श्रील प्रभुपाद जी का संग प्राप्त हुआ है। And I'm just thinking about how amazing it is. One of the most, let's say, events that reminds me most of Srila Prabhupada is the fact that all of you and tens of thousands of other devotees all over the world have dedicated your lives to Srila Prabhupada's mission. यह सबसे अद्भुत और विस्मयकारी बात यही है कि आप में जो श्रील प्रभुपाद का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त नहीं किए, परंतु प्रभुपाद जी का प्रभाव ही हम देख रहे हैं कि आप ही नहीं, हजारों लाखों भक्त है जिन्होंने अपना जीवन भक्ति के लिए समर्पित किया है और भगवान की भक्ति को स्वीकार किया है। If we turn the clock back 50 years, we could hardly imagine what is happening, especially in the Indian subcontinent. विशेष रूप से और 50 वर्ष पूर्व का अगर हम देखा जाए तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतने बड़े प्रमाण में लोग विशेष रूप से भारत भूमि में भी कृष्ण भावना को स्वीकार करेंगे। When I think of being with Srila Prabhupada in Vrindavan in 1976, the first time I was in India, that the temple room in Krishna Balaram temple was more or less all Western devotees, as we call it. विशेष रूप से मुझे स्मरण हो रहा है, पहली बार जब मैं श्री वृंदावन धाम में श्रील प्रभुपाद जी के सानिध्य में 1976 में था, उस समय कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन के पश्चात केवल अधिकांश विदेशी भक्त ही थे प्रभुपाद जी को घेरे हुए। मुश्किल से शायद ही कोई भारतीय भक्त होगा। How pleased Prabhupada would be to see all of you chanting, preaching, following his instructions. मैं विशुभ से विचार कर रहा हूँ कि प्रभुपाद जी कितना अधिक प्रसन्न हो रहे हैं आप सबको एक साथ मिलकर ऐसे जप करते हुए, प्रचार करते हुए, भक्ति करते हुए देखकर। Bhaktivinoda Thakur emphasizes how important it is to hear about great acharyas, the pure devotees of the Lord, how it gives us strength, courage, determination, and satisfaction. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस बात को बतलाते विशेष रूप से भगवान के महान भक्त आचार्य के विषय में श्रवण करने से कैसे हमारे जीवन में व्यक्तिगत उत्साह, प्रेरणा, दृढ़ निश्चय और साहस आदि हमें प्राप्त होता है। How enlivening it is to hear from devotees who had Prabhupada's association. How enlivening it is to hear their interactions with Prabhupada and how Srila Prabhupada transformed the material world into the spiritual realm. विशेष रूप से ये बहुत ही आध्यात्मिक से प्रेरणादायी हो जाता है श्रील प्रभुपाद का प्रत्यक्ष जिन्होंने सानिध्य प्राप्त किया है,
उनके मुख से प्रभुपाद जी के विषय में सुनना, कैसे श्रील प्रभुपाद ने जो भौतिकता थी उसको पूर्णतः आध्यात्मिकता में बदल दिया, भौतिक जगत को लगभग आध्यात्मिक जगत में परिवर्तित किए हैं। And so one becomes completely absorbed, forgetting everything else when we hear sincere devotees speaking about the glories of Srila Prabhupada. और विश्व से प्रामाणिक भक्तों के मुख से जब श्रील प्रभुपाद जी के विषय में हम श्रवण करते हैं, उसमें पूर्णतः हम अपने आप को जब तल्लीन कर देते हैं उस श्रवण में। For many devotees, it revitalizes their enthusiasm to practice their vows or practice devotional service or to go out and preach Krishna consciousness. और इसके द्वारा फिर भक्त लोग जो है उनकी आध्यात्मिक जीवन में और अधिक प्रगति करते हैं, प्रचार में उनको और अधिक उत्साह वो प्राप्त करते हैं। How fortunate, reminds us how fortunate we are to come, such a rare opportunity to meet such a representative of the Supreme Personality of Godhead. विशेष रूप से यह बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जो प्रतिनिधि है श्रील प्रभुपाद जैसे, इनके We विषय में सुनने और इनके हम सानिध्य को हम प्राप्त कर पाए हैं। One could go on and on about the effects of hearing the memories of Prabhupada, and for each and every one of us, there will be at different times different effects. विश्व से केवल इसी बात पर कि श्रील प्रभुपाद जी की जो संस्मृति है उसका क्या प्रभाव हुआ है अलग अलग परिस्थितियों में, अलग काल में, इसको हम निरंतर कहे जा सकते हैं। ये विषय अपने आप में बहुत बड़ा है कि उसका प्रभाव क्या रहा है। At the same time, as much as it's absolutely essential, you could say, to hear the process of hearing about Krishna is the medicinal means of transforming our consciousness. साथ ही में यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुना जाए, श्रवण किया जाए। यह हमारी चेतना को शुद्ध करने का सबसे प्रमुख औषधीय उपाय है। But to hear the glories, the teachings, the pastimes of the Lord's dearmost devotees is even more purifying in many ways. भगवान श्री कृष्ण की महिमा, भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने की महिमा बहुत अधिक है, परंतु उससे भी अधिक भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की जो शिक्षा है, उनका जीवन है, उनका चरित्र है, उसको सुनना और अधिक प्रभावशाली है। We can relate to it. It's something which is much more, you could say, in line with our own situation. विशेष रूप से भक्तों का जीवन अधिक प्रभावशाली इसलिए भी होता है क्योंकि उसके साथ हम अपना संबंध जोड़ पाते हैं। वो हमारी जो वर्तमान परिस्थिति है, हम जिस तरह से रहन सहन कर रहे हैं, वैसे ही जीवनी रही, भक्तों की जीवनी रही है। And most of us probably are fully aware that Krishna is more pleased when he hears his devotees glorified than when he himself is glorified. और विश्व से हम ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं जो भगवान के गुणानुवर्णन से अधिक ऐसे भक्तों का भी गुणानुवर्णन करते हैं। When we read the Prabhupada Leelamrita or other glorious accounts of devotees of their memories of Srila Prabhupada, it has an incredible effect upon us. विशेष रूप से हम अगर श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत को और साथ ही में अन्य जितने भी शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद जी की महिमा को कहा है, उसको अगर हम नियमित रूप से पढ़ते हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में। Sometimes devotees, it just brings tears to our eyes. We feel so, what to say, fully fallen conditioned and so dependent upon his mercy and beg Prabhupada, please, please, may विशेष I रूप से जब वो follow him. पढ़ते हैं, वो उनके हृदय को बहुत अधिक स्पर्श कर जाती है। और कई बार देखा है भक्त लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, उनके नेत्रों से अश्रु आदि निकल जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कृपा जो हम जीवों पर हुई उसको विचार करके। But we don't just want to dwell on the past, we want to bring that past into the present and actually please Srila Prabhupada. Our goal is not just to feel good, but to actually please Srila Prabhupada. यह भी अच्छी बात है कि आप श्रील प्रभुपाद जी के जो मतलब पूर्व में जो लीला है प्रभुपाद जी, उनको सुना जाए, उनको श्रवण किया जाए, उनका स्मरण किया जाए, परंतु साथ में वर्तमान में श्रील प्रभुपाद के विषय में अच्छी भावना होना यह अच्छा है, परंतु उससे अधिक बढ़कर है श्रील प्रभुपाद जी को हम प्रसन्न कैसे करें, यह विचार करना। And so when we hear these memories, it should have the effect of igniting, inspiring us to take up this mission
of Srila Prabhupada's ISKCON movement. श्रील प्रभुपाद जी के विषय में सुनने का एक प्रयोजन यह भी है कि हम और अधिक उत्साही हो, प्रेरित हो, श्रील प्रभुपाद जी के मिशन में पूर्ण समर्पित होकर सेवा करने के लिए। You mostly knew sometimes we kind of lament all the good old days. It was so good, but now and so on. But that's not the right way to look at it. कई बार ऐसा पाया जाता है, कुछ भक्त लोग जो उस समय श्रील प्रभुपाद जी के समय के बहुत अच्छे दिन थे, उस समय कैसे भक्त थे, उस अच्छी अच्छी बातों को वो स्मरण करते हैं, और भी वर्तमान में फिर वो विलाप करते थे, नहीं अब तो ऐसे दिन नहीं है, अब ऐसा इस्कॉन नहीं है, अब ऐसी भक्ति नहीं है। So I'm sitting here in New Mayapur in France at the moment, right next to Srila Prabhupada's rooms here in New Mayapur. अभी वर्तमान में मैं यहाँ पर फ्रांस में न्यू मायापुर में श्रील प्रभुपाद जी के कक्ष के एकदम बगल में ही हूँ। And coming here, at least when I think like this, reminds us of Srila Prabhupada being here in 1975 and 1976. विशेष रूप से यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो मुझे स्मरण हो रहा है 1975 और 1976 में जब श्रील प्रभुपाद जी स्वयं यहाँ पर थे। His desires, his instructions, his words when he was here to the devotees on how to develop this project. विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी उस समय अपनी इच्छाओं को जब व्यक्त किए थे, श्रील प्रभुपाद का जो भाव था, श्रील प्रभुपाद जो हमको निर्देश दिए थे इस प्रोजेक्ट को किस तरह से डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए, इसके लिए। One of Prabhupada's statements, which is not so quoted maybe, but was that at least maintain what I have given you. विश्व से प्रभुपाद जी का एक वाक्य है जो बहुत अधिक वैसे उद्धृत नहीं किया जाता, बहुत अधिक कहा नहीं जाता है, परंतु वो मुझे स्मरण हो रहा है। When we enter into Prabhupada's rooms, any temple where there's a room where Srila Prabhupada personally stayed, you will feel some tremendous transformation. विश्व रूप से कई मंदिर जहाँ पर श्रील प्रभुपाद व्यक्तिगत रूप से जो जिनका शुरुआत किए हैं, जहाँ पर रहे हैं, और वहां पर मंदिर में जहाँ पर प्रभुपाद जी का स्वयं का अपना कक्ष रहा है, उस कक्ष में जाकर एक विशेष कुछ प्रभाव और अनुभव हमने किया है। So many devotees will vouch for the fact that when one would come into Prabhupada's room before Srila Prabhupada, how whatever trials, whatever difficulties, whatever problems one think one's faced with, they would seemingly just evaporate. They would dissolve in the presence of Srila Prabhupada. विशेष रूप से भक्तों ने अपना अनुभव बतलाया कि श्रील प्रभुपाद जी का कक्ष जिन जिन मंदिरों में है, कितने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में समस्या हो, कुछ चुनौतियां हो, कोई कष्ट हो, जैसे प्रभुपाद जी के कक्ष में, कमरे में भक्त लोग प्रवेश करते हैं, अनुभव किया है कि वह सब कुछ ऐसा लगता है सब कुछ उड़ गया, जितने भी समस्या है जीवन से। We could say that this is the effect, the appropriate effect of coming in the association of pure devotees, that it automatically clears away all the clouds in our consciousness. विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि यही वांछित है, यही अपेक्षा की जाती है कि जब ऐसे शुद्ध भक्तों का हम संग प्राप्त करें तो हमारे भी जीवन में जो दुविधाओं के असमंज मतलब अलग प्रकार की जो भी संशय है, उसके बादल है, सब कुछ चले जाते हैं और जीवन में स्पष्टता आ जाती है शुद्ध भक्तों की संगति से। And I'm going to take a slightly different approach to my memories of Srila Prabhupada, and just I'd like to share certain words of Srila Prabhupada that मैं mean. थोड़ा अलग प्रकार से प्रस्तुत करना चाहूंगा मेरा श्रील प्रभुपाद जी के विषय में जो संस्मृतियां है, विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों का मैं स्मरण कर रहा हूँ That remind me of Srila Prabhupada, sustain my meager endeavors, and inspire me to try to become more of an instrument for Srila Prabhupada's word. प्रभुपाद जी के वचन जो है वो मुझे अभी भी वर्तमान में बहुत अधिक प्रेरित करते हैं, मुझे अपने भक्ति में बनाए रखने के लिए और फिर आगे सेवाओं को और अधिक करने के लिए मुझे प्रेरित करते हैं। I'll start with one purport of Srila Prabhupada's in the 4th canto of Srimad Bhagavatam, chapter 24. To me, Srila Prabhupada's books are the main way that I feel Prabhupada's presence. तो विशुभ से मैं यहाँ पर श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 है और उसमें 24वां जो अध्याय है
उसमें से कुछ पढ़ने विचार कर रहा हूँ। विश्व से मेरे जीवन में प्रभुपाद जी के जो वाक्य है इनका विशेष स्थान रहा है। We can feel all the acharyas are present there with Srila Prabhupada when we look at, when we open and hear the words therein. विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी के जब शब्दों को हम पढ़ते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं प्रभुपाद जी के साथ सभी आचार्य उनके साथ में हैं। I was thinking of that picture of Srila Prabhupada when he was in the Radha Damodar temple and Rupa Goswami appeared before him to मैं inspire उस चित्र him. का स्मरण कर रहा था। श्रील प्रभुपाद जब राधा दामोदर मंदिर में है और फिर वहां जो चित्र दर्शाया जा रहा है भक्तों के द्वारा, जिसमें रूप गोस्वामी श्रील प्रभुपाद जी को अपने दर्शन दे रहे हैं। To inspire Srila Prabhupada and reassure him that his mission to fulfill his Guru Maharaj's instructions would be successful. जिस प्रकार से वहां पर अनुभव किया गया, श्रील रूप गोस्वामी कैसे प्रभुपाद जी को आशीर्वाद दिए और उनको आश्वस्त किए कि आप अपने गुरु महाराज का जो आदेश है उसको बहुत ही सफलतापूर्वक आप कर पाएंगे। It's almost like Rupa Goswami entered into our Srila Prabhupada and along with all the other acharyas, and they went to the Western Hemisphere, so to speak. और हम कह सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद के साथ साथ में श्री रूप गोस्वामी ने अन्य समस्त आचार्य भी प्रभुपाद जी के साथ में थे जब प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में आए हैं। So our movement is based pretty much on that instruction of Bhakti Siddhanta Maharaj to our Srila Prabhupada to preach in the English language in the Western world, all over the world, wherever. अवश्य से श्रील भक्तिदान सरस्वती महाराज अपने आदेश के द्वारा जो पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भावना का प्रचार। So I'll read this little part of the purport. The disciple should not consider whether he is going back home, back to Godhead. His first business should be how to execute the order of his spiritual master. विश्व से प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक शिष्य को बहुत अधिक उत्साही नहीं रहना चाहिए भगवान के धाम जाने के लिए। उसका उत्साह होना चाहिए आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों को दृढ़तापूर्वक पालन कर सके। Thus, the disciple should always meditate on the order of the spiritual master. शिष्य को सदैव जो आध्यात्मिक गुरु के शब्दों पर का चिंतन करना चाहिए। And that is perfectional meditation. वास्तविक ध्यान की सिद्धि या पूर्णता यही है कि गुरु के वचनों का स्मरण सदैव होता रहे। This way, there's no difference between the order of the spiritual master and his personal self, you could say. और इस प्रकार से आध्यात्मिक गुरु के वपु और वाणी में कोई अंतर नहीं रहता है। It's understood that actually the order of the spiritual master or the instruction, serving that order is more important than serving the personal form. आध्यात्मिक गुरु के व्यक्तिगत रूप की सेवा से अधिक महत्वपूर्ण जो है वह है आध्यात्मिक गुरु के शब्द और वचन निर्देशों का पालन करना। Through that Vani that we can actually understand how to serve the Vapu. देखा जाए तो वाणी के द्वारा ही हम सीख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वपु की दिव्य वपु की सेवा कैसे की जाए। Your Prabhupada goes on, not only should he meditate upon the order, but he should find out the means by which can perfectly worship and execute it. केवल उनको अपने गुरु के शब्दों का चिंतन और स्मरण नहीं, ध्यान नहीं करना चाहिए, साथ ही में अलग प्रकार के उपाय सोचने चाहिए कैसे वह आदेश को पूर्ण कर सकते हैं। This is one from Srila Prabhupada's Vishishastakam, I think, whatever it's called. Prabhupada delivered many years ago a beautiful poem excuse me, as an address to his godbrothers on the occasion, I believe, of Vyasa Puja ceremony of Srila Bhakti Siddhanta Maharaj. विश्व से श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के व्यास पूजा के समय उन्होंने कुछ अपने शब्द कहे थे अपने गुरु भाइयों के बीच में। This has always been one of the statements that Prabhupada made, which is that really stuck with me and really made me feel what my personal relationship with Prabhupada is. विश्व से श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के बारे में जब शब्द कहे, ये शब्द मेरे हृदय को बहुत अधिक स्पर्श किए
और उनके द्वारा मैं प्रभुपाद के साथ अपने संबंध को अधिक अनुभव कर पाता हूँ। And this is it. But simply a festival of flowers and fruits does not constitute worship. केवल फल को फूल को अर्पण कर दे, आरती उतार दे, इसी के साथ गुरु का जो उत्सव है पूर्ण नहीं होता है। The one who serves the message of the Guru really worships him. वास्तविक गुरु की आराधना, पूजा, आरती कौन सी होती है? जब गुरु के वचन है उसको हम अपने जीवन में धारण करके पालन करते हैं। The service of the message is the real meaning of the Vedas. वास्तविक जो आदेश है उसकी सेवा करना, यही समस्त वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष है। Prabhupada, in that presentation, he also quotes the famous verse of Srila Bhaktivinoda Thakur. He reasons ill who tell that Vaishnavas die while thou art living still in sound. The तो वहां Vaishnavas पर die. Okay, go for it. श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा में संबोधन के समय विशुद्ध से भक्तिविनोद ठाकुर के वचनों को भी स्मरण कर रहे थे। भक्तिविनोद ठाकुर अंग्रेजी में जो एक कविता कहते हैं जिसके अंदर कहा जाता है कि वास्तविक भक्त लोग के विषय में, आचार्य के विषय में जब कहा जाता है कि वो संसार में नहीं रहे, मर गए, तो ऐसा कहना मतलब गलत है। वास्तव अपने शब्दों के द्वारा सदैव बने रहते हैं। The Vaishnavas die to live, and living try to spread a holy life around. जो वैष्णव है मरने पर भी वो सदैव जीवित रहते हैं और अपने वाणी के द्वारा वो प्रचार प्रसार करते रहते हैं। Very deep statement. Usually we hear spread the holy name around, but the actual statement is life around. It includes the holy name. The holy name is our life. So much, can repeat, I just missed. Sorry, we usually hear to spread the holy name around, but the actual verse goes to spread a holy life around. साधारण तौर पे हम इसी बात को सुनते हैं कि भगवान का जो पवित्र नाम है, पवित्र नाम को प्रसारित करना है, परंतु आज पवित्र नाम ही नहीं, जो पवित्र जीवन है, पवित्र जीवन शैली है, उसको प्रसारित करना है। Holy life automatically includes the spreading of the holy name, the chanting of the holy name, etc. पवित्र जीवन शैली के अंतर्गत ही अपने आप पवित्र नाम का जप है ये आदि सम्मिलित हो जाता है। Memories of hearing Srila Prabhupada chanting the pure holy name in श्रील प्रभुपाद की जब Bhaktivedanta. संस्मृति की जाती है उसमें तो फिर हम स्वाभाविक से स्मरण करते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो शुद्ध नाम का कीर्तन किया गया उसको भी। Some more statements which really, let's say, resonate in my heart, which bring a bondage or an attachment, a dedication to Srila Prabhupada. मैं और कुछ शब्दों को यहाँ पर पढ़ना और स्मरण करना चाहता हूँ जो मेरे हृदय को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं मेरे जीवन में। Prabhupada was asked one time, what will happen when you die? एक समय श्रील प्रभुपाद जी को जो प्रश्न पूछा गया, प्रभुपाद जी आपकी जब मृत्यु हो जाएंगी तब क्या होगा? Prabhupada replied, I will never die. I will live forever in my books. और तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, मैं इन ग्रंथों के द्वारा सदैव जीवित रहूंगा। And I'm sure we all have, those who are having any association with Srila Prabhupada, very much awareness of how much Srila Prabhupada put emphasis upon book publication, book distribution, reading the books. जितने भी भक्तों को श्रील प्रभुपाद जी का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त हो, सभी भक्तों का अनुभव रहा है कि प्रभुपाद जी ने बहुत अधिक जोर दिया है इन ग्रंथों के प्रकाशन में, वितरण में, अध्ययन आदि में। However, as a little side note, I would mention in 1977, when Srila Prabhupada came to London, that was his last trip to the Western world. विशेष रूप से मुझे स्मरण हो रहा है 1977 में जिस समय श्रील प्रभुपाद जी का अंतिम वर्ष था और तब प्रभुपाद जी हमसे मिलने के लिए अंतिम बार आए थे लंदन में। And we were, of course, all over the world, especially the Western world. Devotees were more or less emphasizing book distribution as our prime activity. And most devotees were going out long hours every day to distribute Prabhupada's books.
यह विश्व से वह समय है 1977 का, जब लगभग विश्व से पाश्चात्य जगत में सभी स्थानों पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा था श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों के वितरण के लिए। और अधिकांश जितने भी भक्त थे, बहुत अधिक समय बाहर ही रहते थे प्रभुपाद जी की किताबों को बांटने में We were समय having बिताते। intensive competitions between different countries to try to increase the book distribution to please Prabhupada. श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग देशों में लगभग स्पर्धा चलती रहती थी, अधिक से अधिक ग्रंथों का वितरण करने के लिए। When Srila Prabhupada came to London, he stayed maybe almost 2 weeks, I believe, if I memory. और उस समय जब अंतिम समय प्रभुपाद जी आए, तो जहां तक मुझे स्मरण है, लगभग प्रभुपाद जी 2 सप्ताह के लिए लंदन में थे। That was the end of August 77 into early September. और ये अगस्त सितंबर इसी समय की बात है जब प्रभुपाद जी लंदन आए थे। And Srila Prabhupada's health, as everyone must be aware, was extremely frail. सर मुझ कैन रिपीट। Prabhupada's health was extremely weak and he was very frail. तो विश्व से उस समय श्रील प्रभुपाद जी का जो दिव्य वपु था, वो प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे, उम्र हो चुकी थी, काफी कमजोर और अशक्त उनका शरीर हो चुका था। But the effect of his presence was even more potent than ever before. भले ही बाहर से प्रभुपाद जी बहुत कमजोर और से बीमार लग रहे थे, परंतु उनका जो उपस्थिति थी वो और अधिक प्रभावशाली और आध्यात्मिक रूप से उसका विशेष प्रभाव भक्त लोग अनुभव कर रहे थे। He gave no classes during that stay. तो देखा जाए तो उस समय 2 सप्ताहों में प्रभुपाद जी ने कोई प्रवचन नहीं दिया। He came for darshan of the deities every day. प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद जी श्री विग्रह के दर्शन के लिए आते थे। And we celebrated his last, in his physical presence, his last Vyasa Puja there at Bhaktivedanta Manor. और वो भक्ति वेदांत मैनर वह स्थान है जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी की व्यक्तिगत उपस्थिति में अंतिम व्यास पूजा महोत्सव मनाया गया। We've just celebrated Srila Prabhupada's Vyasa Puja. और उस समय सभी भक्तों ने मिलकर प्रभुपाद जी की व्यास पूजा मनाई। Interesting, we say this is the 129th year, so to speak, or anniversary of Srila Prabhupada's birth. तो विश्व से अभी हम जैसे श्रील प्रभुपाद जी की 129वां आविर्भाव तिथि उत्सव मनाए हैं। But at the manor, on that occasion, when we devotees had prepared a nice big cake to offer to Srila Prabhupada. He didn't eat it. और उस But समय मैनर के भक्तों ने मिलकर एक बहुत बड़ा केक बनाया था श्रील प्रभुपाद जी को अर्पण करने के लिए। and it's a Western custom to put candles on cakes. और ये पाश्चात्य संस्कृति है कि वो मोमबत्तियां लगाते हैं केक के ऊपर। According to how many years what is your birthday? How many years is it? और जितने साल की उम्र होती है उतने फिर वो मोमबत्तियां वहां पर लगाई जाती है। And they put 81 candles, which is what you'd normally think it would be. और उस समय 1977 में चूंकि श्रील प्रभुपाद जी की उम्र 81 वर्ष हो चुकी थी, तो भक्तों ने 81 जो है वो मोमबत्तियां लगाई थी I केक के happened to ऊपर। be quite close to the Vyasa-san for some reason. And Prabhupada said, why 81? There should be 82. और मुझे याद है कि तब 81 थी, तो प्रभुपाद जी ने कहा 81 क्यों, 82 होनी चाहिए। Asian counting starts from the moment of birth. It's your first birthday. So this is your 82nd birthday anniversary, you could say. Well, not anniversary. प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे उम्र देखा जाए तो जब से आप जब गर्भ में प्रवेश करते हैं तब से वो उम्र गिनी जाती है, तो 81 नहीं 82 होनी चाहिए। So in that sense, this is the 130th. तो उस दृष्टि से कहा जाए, प्रभुपाद जैसे कह रहे थे, तो उस दृष्टि से कहा जाता है अभी हमने जो उत्सव मनाया व्यास पूजा, वो 130वां हुआ। And this is another major way that we can remember Srila Prabhupada by glorifying him on his Vyasa Puja day. और विशेष से श्रीला प्रभुपाद जी की व्यास पूजा के समय उनका गुणगान करके हम उनकी सेवा कर सकते हैं। I highly recommend every devotee, even if it's not read out, never mind, but every devotee to write an offering to Srila Prabhupada. It is so important to make that connection with the pure devotee.
यहाँ जितने भी उपस्थित भक्त हैं मैं सबको यहाँ पर प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। हर भक्त ने जितने भक्त यहाँ पर उपस्थित है, हर भक्त ने अपना व्यक्तिगत श्रद्धांजलि श्रील प्रभुपाद जी के लिए जरूर लिखनी चाहिए, जिसके What I द्वारा want, श्रील प्रभुपाद के साथ एक व्यक्तिगत संबंध को अनुभव करते हैं। what I wanted to mention primarily about this Prabhupada's trip or journey to the Western world was what I heard in the car. I was driving Srila Prabhupada from the airport to the manor. विश्व से मुझे स्मरण उस समय जब प्रभुपाद जी आए थे, प्रभुपाद जी को फिर एयरपोर्ट से कार से भक्तिनंद मैनर लाया जा रहा था। And Srila Prabhupada was in the back seat and he was प्रभुपाद जी giving कार के barely, पीछे की सीट पर थे। sorry, he was hardly speaking, just a few words. प्रभुपाद जी बहुत कम बोल पा रहे थे, मुश्किल से कुछ शब्द उनके मुख से निकल पाते थे उस समय। But he was speaking through Tamal Krishna Maharaj, who was in the front seat. परंतु श्रील प्रभुपाद जी श्रील तमाल कृष्ण महाराज जी के माध्यम से अपने बातों को कह रहे थे। And I must say, I was quite nervous having Tamal Krishna Maharaj sat next to me as I tried to drive Prabhupada to the manor. और उस समय मैं काफी थोड़ा सा नर्वस हो गया था, क्योंकि मैं तमाल कृष्ण महाराज जी के बगल में ही बैठा था उस समय जब वे कार में जा रहे थे। And then Tamal Krishna Maharaj said, Prabhupada is asking about the manor. He wants to know तो about वो the, उस समय तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे कहा, प्रभुपाद जी भक्तिवेदांत मैनर के बारे में पूछ रहे हैं। and Prabhupada wanted to know how were the cows. और विश्व से प्रभुपाद जी जानना चाहते हैं यहाँ पर जो गौ माता He, है वो कैसी है। he wasn't asking about books. He wasn't asking how many devotees we were recruiting. He wanted to know how the cows were, who was looking after them, how much milk, were they being प्रभुपाद properly जी यह cared नहीं for? पूछ रहे थे कि ग्रंथों का कितना वितरण हुआ है, भक्तों के बारे में नहीं पूछा। प्रभुपाद जी ने पहला प्रश्न पूछा, गौ माता कैसी है, उनका कौन ध्यान रख रहा है, कैसी उनकी सेवा हो रही है। And basically he had a few darshans and discussed a few things with leaders, but very little during that trip. But it was mostly about the necessity for Varna ashram. तो उस समय देखा जाए तो प्रभुपाद जी बहुत अधिक आदान प्रदान भक्तों के साथ नहीं किए थे, बहुत प्रवचन नहीं दिए थे। परंतु प्रभुपाद की एक विशेष भावना उस समय थी कि प्रभुपाद जी वर्णाश्रम को स्थापित करने के विषय में बहुत अधिक गंभीर थे उस समय। We increased the book distribution when Prabhupada was there. We would go out longer hours. We would pray and endeavor even more than usual. तो हम जो अधिक से अधिक ग्रंथ वितरण कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी व्यक्तिगत रूप से तो बहुत अधिक रूप से हम बहुत ही आर्त भाव से प्रार्थना आदि भी कर रहे थे। We didn't hang around because Prabhupada was there. This was the call to duty. This was what we only wanted to do what we thought Prabhupada would be most pleased with. हालांकि प्रभुपाद जी वहां पर व्यक्ति उपस्थित थे, तो ऐसा नहीं कि हम प्रभुपाद को घेरे रहते थे, प्रभुपाद के अगल बगल में घूमते रहते थे। हम यह विचार रहता था कि प्रभुपाद जी खुश किससे होंगे, हम बाहर जाकर किताबों को बांटेंगे, ये प्रभुपाद जी को ज्यादा खुश करेंगे। यह विचार करके हम अधिक से अधिक समय बाहर रहते थे, हालांकि प्रभुपाद स्वयं उपस्थित थे तब भी। Prabhupada said that the love which the devotees were expressing was overwhelming. He couldn't stay for Guru Puja. It was too much for him. He would leave after darshan, go back to his room. विश्व से शिला प्रभुपाद जी वहां पर जब दर्शन किया, प्रभुपाद जी भक्तों का प्रेम को देखकर बहुत ही उनका हृदय को स्पर्श हो रहा था कि भक्त लोग कितना उनके लिए कर रहे हैं, कितना उनसे प्रेम करते हैं। प्रभुपाद फिर Every दर्शन के बाद बहुत अधिक रुक नहीं पाते थे, प्रभुपाद जी अपने कक्ष में आ जाते थे। every day we would send the book scores, individual scores of book distribution to Srila Prabhupada in his room. और सभी भक्त जो भी किताबों का वितरण कर रहे थे, प्रतिदिन प्रभुपाद जी के कमरे में फिर उनको रिपोर्ट जाता था कौन कौन भक्त कितने किताबों का वितरण किए हैं। And one devotee suggested Srila Prabhupada, this is too much of a strain to hear these scores every day. फिर एक वक्त प्रभुपाद जी कहते, हर रोज ये किताब कौन कितनी बांट रहा है, ये आपको बार बार सुनाना, आपको ऐसा लग रहा है हमको हम आपको तो कुछ तकलीफ दे रहे हैं। But Prabhupada replied, no, this is what has given me life. This is what I live for, to hear how these books are being distributed. जब भक्त ने कहा कि प्रभुपाद आपको कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है बार बार ये सब बातें सुनकर, प्रभुपाद जी ने कहा, ये जो ग्रंथों का वितरण का जो स्कोर मुझे बताया था, यही मेरा जीवन है, यही To मुझे hear और how अधिक संजीवित कर रहा है। to hear how his disciples were
working so hard, assisting him in his mission. विशुभ से प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगता था उनके शिष्य जो है इतनी कठोर मेहनत कर रहे हैं प्रभुपाद जी के मिशन में सहायता करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। Another statement, a famous statement, which Srila Prabhupada actually in his original Srimad Bhagavatams in maybe 1962 or whenever, he wrote this right at the very beginning, like in the preface of the Srimad Bhagavatam. विशुभ से श्रीमद् भागवत के आमुख का जब प्रभुपाद जी लेखन कर रहे थे 1962 में, उस समय प्रभुपाद जी ने आमुख में एक बहुत सुंदर भागवत के परिचय में एक वाक्य लिखा है जो बहुत विशेष है। And he wrote this on the anniversary day of the disappearance of his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Maharaj. और विशुभ से वह वाक्य प्रभुपाद जी ने उस दिन लिखा था जब श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके गुरु महाराज है, उनका तिरुभाव तिथि महोत्सव था। He lives forever by his divine instructions, and the follower lives with him. और विशुभ से प्रभुपाद जी ने यह वाक्य लिखा कि आध्यात्मिक गुरु अपने दिव्य वाणी के द्वारा सदैव अपने शिष्य के जीवन में उपस्थित रहते हैं। When we dedicate ourselves to Srila Prabhupada's instructions, Srila Prabhupada is with us. विशेष रूप से अगर हम श्रील प्रभुपाद जी की दिव्य वाणी शब्द है उसके प्रति समर्पित होते हैं, उसकी सेवा करते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से प्रभुपाद जी का संग प्राप्त कर रहे हैं। When Prabhupada returned from London to Mumbai and then onwards to Vrindavan, when he arrived in Vrindavan, there was a collection of statements that Prabhupada made before his departure. I like विश्व से प्रभुपाद जी लंदन से मुंबई आए और मुंबई से अंततः जब वृंदावन आए तो प्रभुपाद जी के जो भी निर्देश मिले हैं उसका संकलन किया जाने लगा। And again, these are eternal inspirations, memories of Srila Prabhupada's words which drive us forward, which give us the strength we need. और जो शाश्वत रूप से हमें जो आध्यात्मिक प्रेरणा देते हैं, हमको आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं, वे श्रील प्रभुपाद के दिव्य शब्द ही है। There is nothing new to be said. और उस समय प्रभुपाद जी का विशेष वाक्य था कि अब कुछ नया कहने के लिए है नहीं मेरे पास। Whatever I had to say, I have already said in my books. प्रभुपाद जी ने कहा कि जितना मुझे कुछ कहना था आप सभी को, मैंने अपने किताबों के माध्यम से मैं सब कुछ कह चुका हूँ। This is absolutely unique, but Srila Prabhupada is personally present in this transcendental form. As Krishna is present in this transcendental form, he is there with Krishna in the Bhagavatam. जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब अप्रगट हुए तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हो गए, वैसे श्रील प्रभुपाद भी अपने इन तात्पर्यों के रूप में, अपने शब्द वाणियों के रूप में प्रभुपाद भी भगवान श्री कृष्ण के साथ में उपस्थित हैं। Now you must all try to understand it and continue with your endeavors. तो इसको आप सभी को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, ये सब प्रभुपाद जी के शब्दों को। Whether I am present or not present does not matter. प्रभुपाद जी वहां पर कहते हैं कि मैं प्रत्यक्ष रूप से रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये बहुत अधिक मायने नहीं रखता है। Just as Krishna is living eternally, the living being also lives eternally. और फिर प्रभुपाद जी कहे जिस प्रकार से कृष्ण शाश्वत है, कृष्ण नित्य रूप से रहते हैं, वैसे ही जीवात्मा भी नित्य शाश्वत रूप से रहता है। But especially Kirtir Yasya Sajivati, one who has done service to the Lord lives forever. और वहां पर प्रभुपाद जी का कीर्ति यस्य सजीवती, जिस भी जीव ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा की है, भक्ति की है, वो शाश्वत रूप से उसकी यश के द्वारा वो बना रहता है जगत में। You have been taught to serve Krishna, and with Krishna will live eternally. और आपको ये शिक्षा दी गई है कि किस तरह से श्री कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण कैसे शाश्वत रूप से रहते हैं। So live forever by serving Krishna. और कृष्ण की सेवा करके आप भी शाश्वत रूप से रह सकते हैं, नित्य जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। I'll cut some things out here. I will always be with you through my books and my orders. और तब प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं अपने निर्देश के द्वारा, अपनी किताबों के द्वारा हमेशा आपके साथ में रहूंगा।
I will always remain with you in that way. और इस रूप में मैं सदा सर्वदा आपके संग आपको अपनी संगति देता रहूंगा। And these type of words, they apply just as much to everyone online as they do to those who are with Srila Prabhupada. You can feel his presence ये शब्द now. जितना अधिक उस समय जो प्रभुपाद जी के साथ में रहे उनके लिए जरूरत है, उतना ही अभी भी वर्तमान में जितने भक्त हैं वे भी इस शब्द को स्वीकार करते हैं, वे प्रभुपाद जी की व्यक्तिगत उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। There's nothing to lament. Prabhupada is personally present with us. तो कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभुपाद जी अभी भी हमारे साथ में है। And here's one which I find for myself, particularly because of the situation which I'm in, this statement is very valid to me. और विशुभ से मैं वर्तमान में जिस परिस्थिति में हूँ, यह वाक्य मुझे बहुत अधिक मुझे इससे अपना कनेक्शन अधिक लगता है। This is a lecture Prabhupada gave in Hamburg in 1969. विशुभ से 1969 में हैम्बर्ग में श्रील प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया, उसमें कुछ बातें मुझे स्मरण हो रही है। Prabhupada said, either you put me in hell or heaven or this or that, it is all the same. प्रभुपाद जी ने कहा कि आप मुझे स्वर्ग में रखो या नरक में रखो, कहीं भी रखो, वो सभी स्थान एक जैसे हैं मेरे लिए। Because he is always with Krishna, chanting Hare Krishna. Krishna is always with him. क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी सदा सर्वदा हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण के साथ में ही हैं। So where's the cause of being afraid? तो फिर कोई भय और शोक का प्रश्न ही नहीं उठता है। Thinking this place is not good, this place is very good. No. ऐसा सोचना कि ये स्थान ठीक नहीं है, यह स्थान ठीक है, यह सोचना गलत है। Wherever Krishna is there is very good, that's all. श्री कृष्ण जहां पर है वही स्थान सही है। And how much we can see this, memories of Srila Prabhupada are not only, you could say, what we personally experience, but what we hear from others, which sticks in our hearts. Much can repeat. Yeah, memories of Srila Prabhupada are not only that which we directly experienced, but also what we hear from others, which sticks in our heart like a permanent memory. तो विशुभ से हम श्रील प्रभुपाद जी के विषय में जो स्मृति मतलब जो हम सुनते वह नहीं, तो साथ में उसमें से जो चीज हमारे हृदय में सदैव बनी रहती है। To remember, driving forth, for instance, in my situation, let me see, when Prabhupada was going on Sankirtan in Delhi alone, trying to distribute his literatures in the heat with very little response. विशुभ से हम देखते कैसे श्रील प्रभुपाद जी दिल्ली की कड़ी धूप में जब ग्रंथों का वितरण करते थे, कोई उनको ध्यान नहीं देता था, कोई उनको मदद नहीं करता था। प्रभुपाद कैसे कठोर संघर्ष अकेले किए है प्रारंभिक दिनों में। Being gored by a cow on the boat, he had heart attacks. और उस समय एक जिस बैल ने भी उनको मार दिया था, आगे चल के प्रभुपाद जी को हृदयाघात भी हुआ। When he was alone in New York, walking the streets of New York, और विशेष meditating on the प्रारंभिक orders दिनों में of the न्यूयॉर्क में Lord, अकेले वहां के चौराहों पर चलते थे प्रभुपाद जी, trying to distribute his Srimad Bhagavatams. और उस समय भागवत के उस ग्रंथों को वितरण करने का प्रयास करते थे। In India, he was alone before he went, practically speaking, and when he was in New York, practically alone in severe. पाश्चात्य जगत में जाने के पूर्व भारत में प्रभुपाद जी अकेले थे। पाश्चात्य जगत में पहुंचने के बाद भी प्रभुपाद जी प्रारंभिक दिनों अकेले ही थे। Severe situations, not knowing where the next penny would come from. और ऐसी स्थिति उस समय थी कि अगले दिन अब और पैसा कहाँ से आएगा, अगले दिन का कैसे निर्वाह होगा, यह भी कुछ निश्चित नहीं था। So this sustains us, these memories of Srila Prabhupada's sacrifice, his devotion, his dependence on Krishna. विशुभ से श्रील प्रभुपाद जी का जो त्याग है, बलिदान है, उनका जो समर्पण है और श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो पूर्ण निर्भरता है, उस That's why वो हमें प्रेरित करती है।
I say that the present situation reminds me of Krishna when we go on the streets of Paris or any city here in France in the winter and the cold. विश्व से यहाँ पर अभी पेरिस में बहुत शीतकाल में जब बाहर रास्तों पर जाते हैं प्रचार आदि के लिए, वह हमको स्मरण दिलाता है भगवान श्री कृष्ण का। Being rejected or chased by the police or insulted or whatever it may कई be. बार अपमानित होना पड़ता है, कई प्रकार की प्रतिकूलताएं आती है, कई बार कुछ पुलिस के द्वारा प्रताड़ित भी होना पड़ता है। Everybody saying no mercy, no mercy, no mercy, no mercy, no mercy, no mercy, no thank you. और विश्व से मतलब कोई धन्यवाद नहीं, कोई आभार नहीं, कोई किसी प्रकार का भी अनुकूलता नहीं मिलती है अनुभव में। We meditate and remember Srila Prabhupada's sacrifice when he would और जब go. हमको कोई मतलब सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहे हैं, उस समय केवल श्रील प्रभुपाद जी का त्याग बलिदान का हम जो स्मरण करते हैं, उन्होंने कितना कष्ट सहा है, ये हमको प्रेरित करता है, भले हमको कोई परिणाम ना मिल रहा है फिर भी। Some another situations of difficulty, even in our own personal lives, maybe we become somewhat disheartened or disturbed or confused, we take shelter of Prabhupada. व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में भी जब चुनौतियां आती है, कुछ नकारात्मक अनुभव होते हैं, जब कष्ट आते हैं, विश्व से श्रील प्रभुपाद जी के जब कष्ट और त्याग का हम स्मरण करते हैं, तो वो अत्यंत नगण्य लगता है। I'll finish with one statement here. That's it. तो मैं और एक वाक्य कहकर अपने वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। Jumping over a few thoughts, but the instructions of my spiritual master to worship the personality of Godhead by chanting. That is a long sentence, so maybe should I say the whole sentence? Can you remember? Yes, Maharaj. Okay, so this is one of the statements of Vishwanath Chakravarti Thakur, which Prabhupada himself says was the great inspiration in his mission. श्रील प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के वचनों को स्मरण करते, जिसने श्रील प्रभुपाद को उनके मिशन सेवा कार्य में बहुत अधिक प्रेरित किया है। The instructions of my spiritual master to worship the personality of Godhead by chanting, remembering, serving his feet, and so on are my only sadhana practice and my only sadhya and my only livelihood. आध्यात्मिक गुरु के जो शब्द है, निर्देश है, उनका पूजन करना वही मेरा साधन है और वही मेरा साध्य है। This is my only livelihood. यही मेरी आजीविका है। When I remember this, this is me speaking now. My memories of Srila Prabhupada are always that he was trying to encourage us to focus on this. Although we're remembering Prabhupada and depending on Prabhupada as much as we can, but his desire is that, what is it for? It's to serve, to put Krishna in the center. तो विश्व से हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी को भाव जो है कि हालांकि भक्त लोग प्रभुपाद जी की सेवा करना, प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु प्रभुपाद जी का भाव ये था कि सभी भक्त क्या करें, कृष्ण को केंद्र में रखें और श्री कृष्ण की सेवा करें। As we know that Prabhupada is always with Krishna, so if we're putting Krishna in the center, we're also putting Prabhupada in the center. वास्तविक देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद तो सदा सर्वदा श्री कृष्ण के साथ में है, तो श्री कृष्ण को अगर हम अपने जीवन का केंद्र बना देते हैं, तो कृष्ण के साथ में फिर प्रभुपाद भी साथ में आ ही जाते हैं केंद्र में। Vishwanath says, I am incapable of giving up these instructions, either in the stage of practice or in the stage of perfection. और विश्व से यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु के निर्देश है, चाहे मैं साधन की अवस्था में हूँ, चाहे मैं साध्य भी प्राप्त कर लूं, परंतु गुरु के वचनों को मैं कभी त्याग नहीं सकता। So these instructions of my spiritual master are all that counts to me. वास्तविक मेरे जीवन में कोई चीज मायने रखती तो वो केवल और केवल मेरे गुरु के वचन ही है। They alone are my object of desire and my only responsibility. वे ही मेरे जीवन का एक वे वांछा है
और वही मेरे जीवन का एक में उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि गुरु के शब्दों को मैं पालन करूं। Besides them, I can desire no other responsibility, not even in my dreams. और गुरु के वचन को छोड़ के और कोई बात को मैं ना तो स्मरण करता हूँ, स्वप्न में भी मैं उनका विचार नहीं करता। It is all the same to me whether I feel happy or unhappy, or whether my material existence is eradicated or not. तो भले ही मैं सुख में रहूं, मैं दुख में रहूं, मैं जीवित रहूं या मैं मर जाऊं, सभी अवस्थाओं में ये गुरु की वाणी ही मेरे जीवन का सार है। Hare Krishna. So let us try to absorb ourselves in the heart of Srila Prabhupada, his books, his instructions. Try to put them आइए हम into अपने को पूर्णतः से तल्लीन करें और इसका चिंतन करें। श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ है, श्रील प्रभुपाद जी की वाणी है, श्रील प्रभुपाद जी के भाव को no matter what happens around us. Let us हमारे try to चारों ओर भले dedicate. कुछ भी क्यों ना हो, Let us try to dedicate ourselves to those instructions. बस प्रभुपाद जी की वाणी, उनके निर्देश के प्रति पूर्णतः हम समर्पित हो जाए And play a little part in assisting him in spreading love for Krishna everywhere. और अपनी जो नगण्य से भूमिका है विश्व से सर्वत्र हरिनाम प्रचार करने की, उसमें अपनी भूमिका को हम निभाएं। Hare Krishna. Okay, हरे कृष्ण। 1 hour is up and I've gone over time. Thank you for your patience and tolerance. And I तो didn't महाराज quite जी सभी धन्यवाद दे रहे, 1 घंटा हो चुका है। आप सभी ने बहुत ही धैर्य के साथ जो श्रवण किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे।